Hi, hello, dear friends. Jai Hind. Today we are going to see one example of a direct and indirect speech, the way in which it is asked in the exam. Now, it is possible that there may be some change in the question, as in place of these blanks, you can be given some MCQs. And you have to select from one of those MCQs. We will learn that kind of example very soon, but right now, what are the things that we need to keep in mind? That's what we are going to learn now. So let's see what is the question. This is the question of a direct and indirect speech. You have to change the narration. Before doing that, I advise you to read the sentence carefully. If you read the sentence carefully, you will come to know that this sentence has a variety of sentences. Let's see what is there in a sentence. You will see Santosh, the first statement is said by Santosh, and what does Santosh say? Santosh is using one interrogative sentence. Why have you been getting into a fight with your friend Ashok? So, Santosh is asking Ram. There is a conversation between two people, and Santosh is asking a question to Ram. And what does Santosh say? Why have you been getting into fight with your friend Ashok? So we have one more character here, and that is Ashok. Okay, so Santosh asks Ashok. Now, what does Ram reply? Ram says, he said some stupid things. Okay, this is a statement. And this is a reply given by Ram to what Santosh had said. Then Santosh says something. Santosh says, it doesn't matter what Ashok said. This is a statement. Then there is a full stop. Then it doesn't justify picking a fight with him. This is a statement. Again, the same dialogue said by Santosh is continued here. What did Ashok say anyway? So the statement, the communication of Santosh ends with a question, right? And then what Ram said? He said, Santosh is a joker. Now you'll see that this statement is funny, and you will understand that Ram was fighting with Ashok because Ashok called Santosh a joker, and Santosh said you shouldn't fight for such things. So finally it ends in a kind of funny statement. So this is what given here. This is the conversation between Santosh and Ram. After that, you will be given a paragraph. This is the paraphrase of whatever dialogue goes on. This is written in paragraph form. But at some places, you will be given some blanks, and in those blanks, you have to write the reported speech, indirect speech of these dialogues said by the speakers. So, Santosh asked his friend Ram. So this statement is there. So we'll underline what are the things we are going to change into indirect speech. Okay, we are going to do this in detail. Later on, you can do it quicker than earlier. So Santosh asked his friend Ram. As it is interrogative sentence, already asked is used, so you need not worry about that. So this is about the first statement Santosh said to Ram, and you have to change this sentence into indirect speech, this one. And now you should say till when you are going to write.
द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स डायरेक्टली विद द स्टेटमेंट मेड बाय राम। तो हमको संतोष का कंप्लीट स्टेटमेंट, ये वाला, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ओके, अब हो सकता है इस साल आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, बट इसको चेंज करना है हमको, स्ट्रेट अवे इसको चेक करना है पूरा कैसे करते हैं। तो दिस कंप्लीट स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन ए। नाउ यहां पे है बी, राम रिप्लाइड दैट कंजंक्शन लिखा हुआ है, और ये स्टेटमेंट आपको करना पड़ेगा। और कहां तक आया? संतोष तक, संतोष के स्टेटमेंट तक ये आया, मतलब दिस फुल स्टेटमेंट हैज टू बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज फॉर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। संतोष देन सेड दैट, फिर संतोष का डायलॉग, इट डजंट मैटर व्हाट अशोक सेड, ही एडेड, मतलब पहले हमको सी में ये स्टेटमेंट करना पड़ेगा, फिर ही एडेड ऐसा आया, एडेड आया मतलब फुल स्टॉप देने के बाद इट डजंट जस्टिफाई पिकिंग अप अ फाइट विथ हिम, यहां तक का पार्ट हमको करना पड़ेगा डी में। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है कि कहां तक हमको करना है। ओके, आगे हम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ही देन आस्क्ड राम, ऐसा मतलब इसका पूरा दिया हुआ है, मतलब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन में ही इनडायरेक्ट करके दिया हुआ है। एनीवे तक ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो ये हमको नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट रिमेनिंग, और यहां पे हमको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट राम, उसके बाद राम का रिप्लाई, और राम से लेकर आगे जो पार्ट है दैट कम्स इन ई। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। क्या क्या करना है हमने इसका एक बार अंदाजा लगा लिया, तो अब हमको इसके आंसर्स लिखने हैं। लेट्स सी। अब लगे तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक पेपर पे लिख के रखो, उसका आंसर पूरा क्वेश्चन लिख के रखो, फिर आपको समझना इजी जाएगा, क्योंकि मैं जब बोर्ड स्लाइड करूंगा तो शायद आपको क्वेश्चन नजर ना आए। ठीक है, तो आप पेपर पर देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाइल राइटिंग आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है आपको यहां पे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा, उसका आंसर यहां पे आएगा। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट आपको समझो ए का आंसर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो ए का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन में आप चेक करो, आपको दिखेगा कि संतोष आस्क्ड हिज फ्रेंड राम, उसके आगे है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेंटेंस। यू विल सी दैट द क्वेश्चन देयर स्टार्ट्स विथ अ WH वर्ड। ठीक है ना, तो आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट जब आप करते हैं तो वी डोंट यूज द कंजंक्शन दैट, यू हैव टू यूज द WH वर्ड एज इट इज एज द कंजंक्शन। तो हमने यहां पे वाई, ये WH वर्ड जैसे कि वैसे यूज किया। ओके, वाई, हैव यू बीन गेटिंग, ऐसा है, हैव यू बीन, ये वर्ब है पूरा, हैव यू बीन। तो हमको क्या करना पड़ेगा इनडायरेक्ट करने के लिए, यू हैव टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू assertive one। आपको मालूम है कि एवरी टाइम व्हेनेवर यू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो पहले हमको उस इंटरोगेटिव का assertive करना पड़ेगा। एंड द वे ऑफ चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू assertive one इज टू डू सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन। सेंटेंस में देखो वहां पे आया है हैव यू, ये दोनों में चेंज करना पड़ेगा आपको। हैव यू का हो जाएगा यू हैव, सब्जेक्ट ऑपरेटर
इन्वर्जन। ओके, तो अब हैव यू का हमने लिखा यू हैव, अब हमको यू का चेंज करना पड़ेगा, यू इज इन सेकेंड पर्सन। अब ग्रामर की रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। यू इज इन सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे सुनने वाला, सुनने वाला कौन है? बोलने वाला है संतोष, सुनने वाला है राम, तो सुनने वाला राम है, तो राम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। राम एक लड़का है, इसके लिए आएगा ही। ओके, वाई ही, तो वर्ब है हैव बीन गेटिंग। व्हाट इज द टेंस? हैव बीन गेटिंग। It is present perfect continuous tense, and present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. तो उसका हो जाएगा had been getting, have been getting का why he had been getting ऐसा आएगा। into a fight, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनटू इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चेंज नहीं होते। आर्टिकल है, चेंज नहीं होता। फाइट नाउन है, नाउन चेंज नहीं होते। विथ इज अ प्रीपोजिशन, वो चेंज नहीं होता। अभी अगला है योर, योर इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज होते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट। तो योर क्या है? इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन का पर्सन कौन सा है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? राम, राम कौन से पर्सन में है? थर्ड पर्सन। योर का चेंज करना पड़ेगा राम के हिसाब से, क्योंकि राम ऑब्जेक्ट है और वो थर्ड पर्सन में है। ओके, एंड योर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योर इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो उसकी जगह पे थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर वाला पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा और वो आएगा हिज। फ्रेंड की जगह पर फ्रेंड और अशोक की जगह पे आएगा अशोक। दिस इज द फर्स्ट आंसर, व्हाई ही हैड बीन गेटिंग इनटू अ फाइट विथ हिज फ्रेंड अशोक। दिस इज द आंसर फॉर ए। उसके बाद लीव 1 और 2 लाइन्स, एक या 2 लाइन छोड़ो और फिर लिखो बी। मैं थोड़ा कलरफुल लिख रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। आपको एक ही पेन से लिखना पड़ेगा, राइट। अब बी में क्या है? बी का स्टेटमेंट ऐसे, राम रिप्लाइड दैट, दैट इज यूज्ड हियर, सो डोंट राइट दैट, दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डोंट यूज दैट। अब आगे का हमको लिखना है फिर, ही सेड ऐसा है, तो ही इज अ प्रोनाउन, ही विच पर्सन? थर्ड पर्सन, इज इक्वल टू नो चेंज, और आपको एच स्मॉल यूज करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स टीचर में गिव यू रॉन्ग बिकॉज यू यूज्ड एच कैपिटल। दिस इज ऑन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि दैट के बाद सेंटेंस में आ रहा है। हमको ऐसा लगता है कि सेंटेंस की शुरुआत हो रही बिकॉज आवर आंसर स्टार्ट्स विद दिस, but this is the part of answer, not our complete answer. That's why H should be written in small letters. तो H आया ही। said, said, it is in simple past tense, verb का second form है। simple past changes to past perfect. This is the place where most of the students do mistakes. I have seen this. तो he had said, said का had said, because simple past changes to past perfect. तो past perfect is shown by had, उसके बाद verb का थर्ड फॉर्म। ओके, some की जगह पे some डिटर्मिनर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। stupid is an adjective, कोई चेंज नहीं होगा। things एक नाउन है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो he had, तो पूरा आंसर आएगा राम रिप्लाइड दैट ही हैड सेड सम स्टूपिड थिंग्स, ऐसा है। ओके, नाउ विल मूव टू द सी ऑप्शन, देन लीव अ लाइन, देन राइट सी। सी में क्वेश्चन फिर से देखना है, संतोष देन सेड दैट, इट डजंट मैटर व्हाट अशोक सेड, ये पूरा सेंटेंस है, उसका हमको इनडायरेक्ट करना है। तो दैट है क्या वहां पे? क्वेश्चन में दैट है क्या? यस, तो हमको सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा।
सब्जेक्ट क्या है? इट। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इट की जगह पर इट, थर्ड पर्सन, नो चेंज। आई स्मॉल। आगे है डजंट मैटर। डजंट मैटर का क्वेश्चन देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, तो हो जाएगा डिडंट मैटर। इट डिडंट मैटर व्हाट। मैटर आएगा क्योंकि डिड ने पास्ट टेंस दिखाया, तो वर्ब को टेंस करने की जरूरत नहीं है। इट डिडंट मैटर व्हाट अशोक said, ऐसा है। said, again don't forget to change the tense, okay? It didn't matter what Ashok said, simple past का हो जाएगा past perfect, तो वो आएगा what Ashok had said। It didn't matter what Ashok had said, right? इसी का आंसर आया। अब हम जाते हैं डी की तरफ। डी में क्या आया? He added, ऐसा है, added। अब यहां पे आप देखेंगे कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं है, एंड द स्टेटमेंट विच इज देयर फॉर डी इज assertive, तो उसके लिए हमको सबसे पहले कंजंक्शन लिखना पड़ेगा दैट। ही एडेड दैट, फिर इट, इट की जगह पे इट, डजंट जस्टिफाई, डजंट सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस, तो हो जाएगा डिडंट। जस्टिफाई की जगह पर जस्टिफाई, दैट इट डिडंट जस्टिफाई। पिकिंग, पिकिंग कोई टेंस नहीं दिखा रहा है, ओके? इट इज अ जेरेंड, इंफिनिटिव है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, जैसे कि वैसे रहेगा। आर्टिकल जैसे कि वैसे। फाइट, फाइट ध्यान में रखना, इट इज अ नाउन, तो फाइट का फॉट मत करना, ओके? तो आया ना उसके पहले, अगर ये वर्ब होता तो उसके पहले थोड़ी ना आता, वो नाउन है, तो अ फाइट विथ हिम। हिम थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन थर्ड पर्सन में है, तो कोई चेंज उसमें नहीं करना है, ओके? दैट इट डिडंट जस्टिफाई पिकिंग अ फाइट विथ हिम, ऐसा आएगा। उसके बाद का जो पार्ट है, he then asked Ram what his friend Ashok had said anyway, this is in question itself, तो हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अब आएंगे ई की तरफ, और ई क्या कहता है? राम, इतना ही कहा है, ओके? अब राम आगे का सब कुछ आपको लिखना है। You have to write the reporting verb as well. So write the reporting verb. राम, राम ने कहा है, तो राम इन्फॉर्म्ड लिख सकते हैं। राम टोल्ड यू कैन राइट, बिकॉज यू आर एनीवे you are going to introduce a quotation, you are going to introduce a statement, assertive sentence है। For that assertive sentence you can use said, told, informed. So Ram informed that, अब he is in third person, तो third person is equal to no change. But do you know ये he मतलब कौन? We have three people here, Santosh, Ram and Ashok, right? Three people are there. अब ये तीनों में से ही मतलब कौन? To clarify that, you can write in the bracket. तो he here means Ashok. अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो फिर उसमें से चूज कर सकते हैं, बट while writing answer you can clarify that, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, it is understood. ओके, तो ही मतलब अशोक said, simple past changes to past perfect, had said, he had said. अब फिर से कोटेशन है, अब इसको फिर से इनडायरेक्ट करना पड़ेगा हमको, that he had said that. संतोष की जगह पे संतोष जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा हमको. There are some other options as well. You can say you, ऐसे भी ले सकते, but
But as we are going to introduce the quotation said by Ashok, write it as it is. Okay. So he had said that. Now what about this statement? Santosh is a joker. So he said that statement in past, but as he is introducing the statement, you have to tell that statement as it is. Okay. He said Santosh is a जोकर. अब ये स्टेटमेंट को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट हमको जैसे के वैसे लिखना पड़ेगा. तो ही हैड सेड दैट संतोष इज अ जोकर. दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इट एज इट इज. व्हेन यू आर गिवन ऑप्शन, द थिंग्स विल बिकम much easier in this context. Okay, so this is how you have to solve from direct to indirect speech. Okay, I hope you understood. At the end of the video, I have given you 2 examples. Try them, solve them, and send them to me. Okay, we'll meet with the next example soon. Jai Hind.